Upender Bhai, Jai Shri Krishna. And before I introduce anyone or say something, I would like to introduce myself. I am Devendra Parikh and my wife Sobna. And we always take deep pride in taking part of this event. Puja Bhupender Bhai, to the Harrisburg community is like a family. Puja Bhupender Bhai in the past have spoken on Ramayana, Bhagavad Gita, Upanishad, Vishnu Upanishad, and so on and on and on different spiritual subjects. And Puja Bhupender Bhai, today we all sponsors would like to express our gratitude by saying thank you, and thank you again, in spite of your very, very busy schedule. Now, not taking much time, it would be very appropriate if I mention how this Bhakti Yoga group in Harrisburg was originated. Roughly around 12 years ago, a couple of friends got together who had the alike liking and similar thoughts. And we were discussing about Puja Bhupender Bhai, who is considered to be the master on Bhagavad Gita. And finally, we came to conclusion that let us talk to Puja Bhupender Bhai and how feasible it is to organize Gita Adhyay for 18 years. So there were different opinions. Some of the participants were of the opinion that it is a big commitment to continue. But at the same token, there were few members who were absolutely firm that we want to get it done. Does not matter what happens. And that is how this group was created about 12 years ago. And we do know Puja Bhupender Bhai since last 20 years. And that is why in the beginning, I said that Puja Bhupender Bhai and Harrisburg community is like a close family. So at this point, I would like to mention the names of the sponsors because for this divine cause, for the benefit of everyone. And these are the names, Hasu and Harsha Shah. They were, I would say at this point, that the main supporters when we had the meeting and who was very firm to get this event started. Second is myself and my wife, Sobna, Dr. Satish and Rupal Shah. I do not know whether they are here or not. Dr. Naresh Menge, Dr. Ketan and Kalpana Seth, Dr. Jagdish Shah, Anil and Nima Thakrar, Ashok and Asaji Agrawal, Vinod and Umangini Shah, Piyush Gandhi, Satish and Vinu Rathod, and Dr. Sumen and Mishraji. So once again, I want to express my sincere thanks to all these sponsors. So at this token, I would like to offer my flower
to Pothiji and welcome Pujya Bajri. Pujya Bajri. Thank you. Thank you. Now, I will request Asubai and Ursa to do the same thing, to offer the flowers to Pothiji and welcome Pujya Bhupendra Bhai. Asubai, now you can offer the flower. Okay. Correct. Yeah. Okay. Hello, this is Girish Modi once again. At this point, before we start the Amrutwani of Sri Bhupendra Bhai, I would like to give you the few items that you should be aware of. Unlike me, just please put your phone on mute, okay? Please silence, okay? Your Zoom connection should be on mute. All right? Turn off all other equipments and turn off TV or anything else, okay? Please remember, there will be no question answer in the middle or during the weekdays. Only questions and answers will be done on the last day. So please save your questions up to last day. Chances are your question will be answered within first 6 days anyway. Okay. Thus, the entire discussion on Bhakti Yoga will be available on YouTube on or around February 23rd. So in case if you miss one or part of it, you can always go back and catch up. So don't give up. If you miss something, don't worry. You'll be able to see it on YouTube on 23rd or later on, okay? Just remember that we have this whole week starting today, every day 8 to 10 Eastern time, except Saturday and Sunday, it will be 10 to noon Eastern time. So please join us all 7 days, and that's about it, okay? So at this point, without taking any more time, I will request Sri Bhupendra Bhai Pandya, Bhai Sri એમની અમૃતવાણીથી આપણને લાભ આપે. Okay, Sri Bhupendra Bhai, Jai Shri Krishna. Yes. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा ही लगा कि मैं हैरिसबर्ग में हरि मंदिर के स्टेज पर परम भगवदिया हर्षा बहन और उनकी टीम ने तैयार की हुई व्यासपीठ पर बैठकर यह प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे सामने जो सबकी प्रिसाइज जगह आदरणीय देवेंद्र भाई ने जैसे आरंभ में कहा होती थी, मेरे लेफ्ट में देवेंद्र भाई, शोभना बहन, राइट में कुर्सी पर हसू भाई, हर्षा बहन, बिल्कुल सामने नीमा बहन, अनिल भाई, केडी और सदगत स्टैन को याद करूं क्योंकि स्टैन, नरेश, रतु भाई, मधु, कितने लाल, जगदीश भाई, सब उमंग एकदम पीछे अलग को लेकर बैठती। पूरा दृश्य प्रिय स्वजनों इस समय मेरी आंखों के सामने है। ईश्वर की इस लीला को भी प्रणाम कि पिछले 2 वर्षों से बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक people have not been able to meet in person, but thanks to the technology हम मिल रहे हैं। विशेष करके मैं हसू भाई, हर्षा बहन, देवेंद्र भाई, आप सभी के निश्चय को, कमिटमेंट, डेडिकेशन, उसका गौरव करना चाहता हूं कि देवेंद्र भाई का फोन आया मुझे कि गुरुजी हमें ये करना है क्योंकि एवरीवन इज मिसिंग इट एंड दैट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग। आप सब भूपेंद्र भाई को मिस कर रहे हो, वो तो अपना अंगत स्नेह है, जैसा उन्होंने कहा कि वी नो ईच अदर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, और हैरिसबर्ग को तो मैं मोर देन 25 ईयर्स। हैरिसबर्ग में आया ही हसू भाई और हर्षा बहन के घर से, और फिर जो यात्रा शुरू हुई, अपना तो संबंध है ही, लेकिन उससे भी अधिक मुझे जो आनंद हुआ कि यू ऑल आर मिसिंग द सत्संग, यू ऑल आर मिसिंग श्री कृष्ण, यू ऑल आर मिसिंग भगवत गीता। और ये एक बहुत आनंद की बात है कि जीवन में श्री कृष्ण मिस होने चाहिए, जीवन में सत्संग भी मिस होना चाहिए। शुरुआत में ठीक है, मैं आशा थी कि चलो 2-3 महीने की बात है और 3 महीने की बात है, 1 वर्ष निकल गया, समर ऑफ 20, समर ऑफ 21। भक्ति शास्त्र में इसको व्यसन कहा गया है। एडिक्शन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस कि लोगों को जो गलत चीजों का होता है, यह परमात्मा का व्यसन है, यह सत्संग का व्यसन है। महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु और भक्ति मार्ग के सारे आचार्यों ने ईश्वर को यह मिस करने की बात है, सत्संग को मिस करने की बात है, इसको बहुत महत्व दिया है। और श्री कृष्ण की कृपा देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज मियर कोइंसिडेंस, but I am confidently saying that it is sheer grace of Shri Krishna कि हमारा जो अध्याय है वो भी भक्ति योग है। भक्ति की नींव में यही तो है। श्रीमद् भागवत उसका हृदय, दशम स्कंध, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ रास पंचाध्यायी, और उसका भी शिखर सम गोपी गीत में क्या है कि रास लीला में से जब श्री कृष्ण अदृश्य हुए, यह विरह गोपियां सहन न कर पाई। प्रभु प्रकट होइए, प्रभु प्रकट होइए। प्रिय स्वजनों,
हमारी ये हैरिसबर्ग के स्टडी सर्कल के साथ, हैरिसबर्ग के भक्तजनों के साथ इतने वर्षों से जो एक सत्संग रूपी दिव्य रासलीला चल रही है, उसमें से जब श्री कृष्ण दृश्य हो जाए तो आप सभी को ये सहन न हो पाया। प्रिय अशोक भाई, आशा बहन अग्रवाल और सभी को ये सहन न हो पाया। और पुकारा है आपने ये, और जब 2 वर्ष से आर्त स्वर से पुकारते रहे तो आज अकॉर्डिंग टू यूएस टाइम February 17, 2022 शाम के ये 8, सवा 8 बजे का समय ईस्टर्न टाइम यूएसए, परमात्मा श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता की दिव्य वाणी को लेकर के वर्चुअल रूप में आप सभी के घर में, आप सभी के सम्मुख, और घर वो भी एक लौकिक बात है, मैं तो कहूंगा आप सभी के अंतःकरण में प्रकट हो रहे हैं अपनी भक्ति का दिव्य वरदान लेकर के। सो वी ऑल आर ब्लेस्ड। आइए इस अटमोस्ट पॉजिटिव, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल नोट के साथ भगवत गीता के 12वें अध्याय में हम प्रवेश करें। भक्ति योग। थोड़ा सा सिंहावलोकन जैसे हमारी शास्त्र की परंपरा है। वी लुक बैक एट अवर जर्नी, वी ब्रीफली रिवाइंड अवर जर्नी बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। पिछले 11 वर्षों से, उससे पहले भी निरंतर जो सत्संग होते रहे, जैसा मैंने कहा सबसे पहले आदरणीय असू भाई और हसू भाई और हर्षा बहन के घर से शुरू हुआ था, फिर हरि मंदिर में शुरू हुआ। देवेंद्र भाई की, उनके पिताजी के पुण्य स्मरण में भागवत कथा, योगेश भाई, रेणुका बहन, उनके वहाँ राम कथा, और अलग अलग विषय पर प्रिय स्टेन की उपस्थिति में उनके घर पर ईशावास्य उपनिषद, कितने कितने प्रसंग मुझे याद। इट्स लाइक अ कोलाज, कितनों को याद करूं, कितनों का नाम लूं, कितनों का न लूं, लेकिन आप सब इस समय पवित्र भारत की भूमि में, यह दिव्य जहां से अपनी कथा रस प्रवाहित हो रही है, मेरे घर रूपी मंदिर में आप सब मेरे सन्मुख उपस्थित हैं, जैसे मैं आपके घर में उपस्थित हूं। सबसे पहले प्रिय स्वजनों, ये गीता की यात्रा जब हमने शुरू की, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स बिकॉज आदरणीय देवेंद्र भाई ने शुरुआत में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दी है। भगवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। परिवार की ही फूट, दुर्योधन की जिद। पांडवों तो को युद्ध करना ही नहीं था, लेकिन दुर्योधन इस बात पर अड़ा हुआ था। पांडव तो इस बात का अच्छी तरह से फैसला लाना चाहते थे। पांडव कितना छोड़ना चाहते थे, पूरा राज्य उनका अधिकार था, फिर भी केवल 5 गांव यदि दुर्योधन दे दे तो पांडव इस युद्ध से बाहर हो जाना चाहते थे। लेकिन दुर्योधन की जिद ऐसी कि वो कुछ देना नहीं चाहता था, उसे तो केवल युद्ध चाहिए था। कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर पितामह भीष्म के शंखनाद के साथ जब फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ महाभारत वॉर हुआ, सामने से श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और पांडवों ने, पूरी पांडव सेना ने शंख ध्वनि करके प्रतिसाद दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए, ताकि यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान, मैं जरा देख तो लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किया, दोनों ओर दृष्टि करके अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, एक बात स्पष्ट है, जिसकी मृत्यु होगी वो मेरा अपना व्यक्ति होगा। अर्जुन, being a sensitive person and a sensible person,
भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता। ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन ऑल्सो, ही नोज दैट व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट करेक्ट एट द मोमेंट। उसके जैसे प्रभावी क्षत्रिय को युद्ध के मैदान को छोड़कर चले जाना, यह तो बहुत अपमानजनक घटना होगी। और बुद्धिवादी व्यक्ति है अर्जुन, इसलिए वो अपने मूव को रैशनलाइज करने का प्रयास करता है। उसने बहुत सारे कारण दिए, मैं उस कारणों में जाना नहीं चाहता। आप सबने वो प्रवचन सुने हैं और अब भगवान की कृपा से पूज्य श्री भाई चैनल पर ये सब प्रवचन उपलब्ध भी हैं यूट्यूब में। दूसरे अध्याय के साथ पहले तो आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने का प्रयास किया कि अर्जुन ये तुझे शोभा नहीं देता। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अर्जुन तुझे शोभा नहीं देता, डोंट बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन अर्जुन पे उसका कोई असर न हुआ, उसने फिर अपनी दलीलें दी। अल्टीमेटली दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शिष्यत्व प्रकट किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। अर्जुन ने जब परमात्मा की शरण स्वीकार करके स्वयं को श्री कृष्ण का शिष्य बताया और कहा कि प्रभु आप मुझे उपदेश दीजिए, आई एम कंफ्यूज्ड, अब भगवान श्री कृष्ण का रोल बदल गया है। अब केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करना है, उसको जीवन के लिए प्रेरित करना है। और इसलिए प्रिय स्वजनों, भगवत गीता का ग्रंथ केवल अर्जुन को युद्ध, इट इज नॉट ओनली टू इंस्पायर अर्जुन टू फाइट अगेंस्ट कौरवास, अदरवाइज एक मोमेंटरी बात बन जाती और आई गई बात बन जाती। आज 5000 वर्ष के बाद विश्व भर में सब लोग भगवत गीता का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द मैसेज इज यूनिवर्सल, द मैसेज इज बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम। इसलिए आज भी हमारे जीवन को भी जब भी हम कंफ्यूज्ड होते हैं, और बार बार होते हैं हम, विशेष करके 2 सही बातों में कंफ्यूज होते हैं। अर्जुन ने अपने लिए शब्द प्रयोग किया है धर्म सम्मूढ़ चेता। इफ इट इज अ चॉइस बिटवीन द राइट एंड अ रॉन्ग, वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट वी विल डिस्कार्ड द रॉन्ग एंड सिलेक्ट द राइट, बट द कंफ्यूजन इज ऑलवेज बिटवीन सिलेक्टिंग बिटवीन द 2 राइट्स। 2 धर्मों में से एक को पसंद करना है, और ऐसे कंफ्यूजन में भगवत गीता और परमात्मा श्री कृष्ण के शब्द हमारे लिए इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं। दूसरे अध्याय से ही भगवान ने पहले तो मृत्यु का भय हटा दिया, कर्मयोग का उपदेश किया, स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में यज्ञ की बात बताई है कि अर्जुन तुम्हें जो कर्म करने हैं केवल अपने लिए नहीं करने हैं, यज्ञीय भावना से करने हैं। और भगवत गीता में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि जल रहा हो, उसमें आप घी डाल के मंत्रोच्चार करके स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, यह यज्ञ नहीं है। श्री कृष्ण ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड कर दिया है। वॉट एवर यू डू सेल्फलेसली, whatever you do with the intention of helping others and evolving their life, transforming their life, is yajna. And though you don't expect anything in return, in the 5th chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna says, you are always bestowed with all the great activity that you do. आपने फल की अपेक्षा नहीं रखी इसलिए फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो लोग फल की अपेक्षा नहीं रखते, सेल्फलेसली काम करते हैं, उनको तो प्रभु एबंडेंटली देते हैं। 6ठे अध्याय में आत्मसंयम योग की बात कही, मेडिटेशन की प्रोसेस बताई। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं एक एक वर्ष से। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता विश्व का फर्स्ट एंड प्रोबेबली द ओनली स्क्रिप्चर है 5300 वर्ष पहले। ज्ञान और विज्ञान, विजडम एंड साइंस, पॉपुलर शब्द कहूं तो नॉलेज, लेकिन नॉलेज की एक लिमिटेशन है, ज्ञान के लिए विजडम शब्द प्रयोग करता हूं। तो ज्ञान और विज्ञान, विजडम एंड साइंस को साथ में रखा, जो
आज के युग की 21st सेंचुरी की एजुकेटेड प्रोफेशनल यूथ की आवश्यकता है। दे वांट स्पिरिचुअल थिंग बट दे वांट इट ऑन अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, एंड दैट इज व्हाट गीता ऑफर्स, एंड दैट इज द रीजन intelligentsia of the world today is attracted and convinced by the thoughts of Srimad Bhagavad Gita. 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग की बात कही। अभी प्रिय स्वजनों, नवंबर 2021 में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार के द्वारा प्रतिमास जो सत्संग हो रहा है, उसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग को बहुत डिटेल में हमने उनका दर्शन किया। वो भी आप पूरा चैप्टर यदि आप देखना चाहें तो इवन 7वां अध्याय भी है, 6ठा अध्याय भी है। यूट्यूब की पूज्य श्री भाई चैनल पर आपको ये पूरे अध्याय बहुत डिटेल में समझने मिलेंगे। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, रॉयल रोड टू अचीव द सुप्रीम। 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। यूं तो कण कण में ईश्वर व्याप्त है, बट देर आर certain spaces, certain places where you can feel God easily and more eloquently. ये परमात्मा की विभूतियां हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से विनती की, प्रभु ये आपने विभूतियों का वर्णन तो किया और आपने कहा कि आप सब जगह हो। इफ यू फील दैट आई एम क्वालिफाइड इनफ टू हैव योर डिवाइन विजन, मे आई प्लीज। अर्जुन की ये नम्रता देखकर परमात्मा इतने प्रसन्न हुए, तुरंत उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया है। When Arjun quote unquote saw, actually felt with दिव्य दृष्टि given by श्री कृष्ण, भगवान का ये कॉस्मिक विजन जब अर्जुन ने एक्सपीरियंस किया, शुरुआत में तो भयग्रस्त हो गया, पूछने लगा 11वें अध्याय में कि प्रभु आप कौन हो। और भगवान ने जब कहा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, आई एम टाइम अर्जुन, एंडलेस टाइम, और ये सृष्टि में जो भी होता है वो मेरे द्वारा होता है। अर्जुन ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं भी रहोगे तो भी ये लोग बचने वाले नहीं है, धर्म की संस्थापना तो होगी ही। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में, प्रिय स्वजनों, व्हेन वी मेट लास्ट एट हरि मंदिर इन हैरिसबर्ग, समर ऑफ 2019, उसमें हमने ये सारे श्लोकों का दर्शन किया था। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तुझे जो डर लगता है कि तुझे इन सबको मारना पड़ेगा, अर्जुन दे आर डेड ऑलरेडी, दे आर जस्ट टिकिंग, वो तो दे आर काउंटिंग देयर लास्ट ब्रेथ्स। इस संसार में जो भी आया है उसको जाना है, धर्म की संस्थापना तो होगी ही। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। कितने मधुर शब्द हैं। अर्जुन तुम्हें तो निमित्त बनना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था उस समय, इंस्ट्रूमेंटल डिवोशन, भगवान का निमित्त बनना। ईश्वर सब कुछ कर रहा है लेकिन यश हमें दे रहा है, ईश्वर के इस यश का भागी बनना, ये कितनी बड़ी बात है। मैं हमेशा इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत देता हूं कि द फादर वर्क्स हार्ड, ही यूजेस हिज इंटेलेक्ट, ही गिव्स हिज टाइम, अर्न्स मनी, लेकिन जब भगवान के मंदिर में जाए तो उसका जो पुत्र होता है 5 वर्ष का, या तो ग्रैंडसन होता है 5 वर्ष का, ग्रैंडफादर अपनी जेब में से करेंसी नोट निकाल करके, बिल निकाल करके वो चाइल्ड के हाथ में देते हैं और कहते हैं बेटा जे के पास रखो, भगवान के पास रखो। इसने स्वयं कमाया है, ही हैज वर्कड हार्ड टू अर्न दिस मनी,
यदि ये बालक न होता तो वो खुद ही भगवान के सामने स्वयं ही रखते, लेकिन बालक है और चूंकि अपने बालक के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, इसलिए वो बालक को निमित्त बनाना चाहते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सारा कार्य मैंने कर दिया है, बट सिंस आई लव यू, आई अडोर यू, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन तो निमित्त बनो। यह बात जब प्रभु ने कही, अर्जुन ने 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में प्रभु की स्तुति की है, विश्वरूप दर्शन की। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः। स्तुति की, भगवान से विनती की, क्षमा प्रार्थना भी की कि प्रभु भूल से भी मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, मैं आपका स्वरूप न समझ पाया, वो दैट वाज माय लिमिटेशन। आपने कभी अपनी ग्रेटनेस, आपकी महानता बताई नहीं और मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे पता चला है श्री कृष्ण हु यू रियली आर। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, और विनती की कि आपके मूल स्वरूप में प्रकट होइए। शुरुआत में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में और फिर द्विभुज स्वरूप में प्रकट हुए। 11वें अध्याय के 55वें, इन द लास्ट वर्स ऑफ द 11th चैप्टर, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। ये हमने समर ऑफ 2019 में देखा। आज भक्ति योग का जब हम आरंभ करते हैं प्रिय स्वजनों, एक छोटा सा दृष्टांत। लोग कहते हैं कि हम भक्ति तो करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं। न केवल हम करते हैं, एवरीबडी डज इट इन देयर ओन वे। फिर भी जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में या विश्व में परिवर्तन क्यों नहीं आता? नहीं आता, यह बात तो बिल्कुल गलत है। आता है तो फिर कहेंगे हां हां, यस देयर इज सम चेंज, वी डेफिनेटली फील इट, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट वी एक्सपेक्ट। प्रिसाइजली जो भी सही मार्ग से भक्ति करता है, उसके अपने जीवन में तो परिवर्तन आता है और उसके आसपास के लोगों में भी परिवर्तन आता है। बट एज यू राइटली सेड नाउ एंड करेक्टेड योरसेल्फ, कि पहले तो कह दिया कि देयर इज नो चेंज, कहते हैं नो, देयर इज सम चेंज डेफिनेटली, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट वी एक्सपेक्ट। दैट कैन बी आंसर्ड। कैसे? परिवर्तन हम जितना चाहते हैं वो इतनी इसलिए नहीं आता क्योंकि भक्ति का उपयोग ही गलत तरीके से हो रहा है। राजा बैठा है अपने महल में और आवाज सुनी उसने नीचे स्ट्रीट में से, पंखा ले लो, पंखा ले लो। और साथ में वो बोलता गया, only $10 a fan and I guarantee that it will last for 100 years। राजा को आश्चर्य हुआ, $10 का पंखा and it will last 100 years, गारंटी? कैसे चल सकता है? कोई वस्तु 100 वर्ष के लिए तो नहीं चलती जो इतनी सस्ती हो। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी राजा ये स्ट्रीट में से सुनता रहा आवाज। चौथे दिन राजा थोड़ा इरिटेट हो गया कि आदमी मेरी प्रजा को, ही इज चीटिंग माई पीपल। राजा ने उसको बुलाया, गारंटी दे रहे हो तुम? कहता है हाँ गारंटी, योर एक्सेलेंसी। ओके, मैं कोशिश करता हूं, और यदि ये पंखा डैमेज हुआ तो बहुत कड़क सजा मिलेगी तुम्हें। उसने कहा
हम तो आपकी प्रजा हैं, आप तो राजा हो, आप जो कहो वो। राजा ने उसको $10 दिए, पंखा खरीदा और उसके एड्रेस और जो भी कहा है वो सब ले लिया। उसने कहा राजा जी चिंता मत करो, मैं रोज आऊंगा, बिकॉज आई सेल दिस फैन एवरी डे। ठीक है, राजा ने पंखा लिया, पंखे से हवा डालने का प्रयास किया, सुबह से शाम तक में पंखा टूट गया। राजा को इतना क्रोध आया, मुझे भी चीट करता है और कैसे कर सकता है ये, आने दो उसे कल। दूसरे दिन जब वो आया, राजा ने उसको बुलाया कि तुम कहते थे लाइफ लॉन्ग गारंटी, 100 years गारंटी, अरे एक दिन भी नहीं चला तुम्हारा पंखा, देखो टूट गया है। ओ इज इट सो? राजा जी मुझे आप बताइए, आपने ये पंखा उपयोग कैसे किया उसका, हाउ डिड यू यूज इट? राजा का मस्तिष्क में और क्रोध आया। ही गॉट सो वाइल्ड एंड एंग्री, यू आर गोइंग टू टीच मी पंखा कैसे इस्तेमाल करें? नहीं राजा जी बताइए तो सही, मैंने गारंटी तो दी थी, लेकिन बताइए आपने कैसे इस्तेमाल किया? राजा ने कहा जैसे पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे, ये ऐसे करके मैंने पंखा इस्तेमाल किया, ऐसे ही तो होता है पंखा का इस्तेमाल। वो पंखा का बेचने वाला था, वो कहा राजा जी यही तो भूल हो गई, देखो मैंने पंखे के ऊपर फाइन प्रिंट में एक लिखा है कंडीशंस अप्लाई करके, आपको यूज करना नहीं आया। राजा ने कहा तुम मुझे सिखाओगे पंखा यूज कैसे करना है? हाँ राजा जी देखो फाइन प्रिंट्स में लिखा हुआ है, ये पंखा ऐसे यूज करना है कि आपने खरीदा, एक जगह पंखा फिक्स करके रख दो और जब भी आपको हवा की जरूरत पड़े पंखा के सामने जाकर के मुंह हिलाते रहो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पंखा 100 साल चलेगा, उसको हिलाना मत अपनी जगह से। प्रिय स्वजनों, यह दृष्टांत सुनकर के आप सबको हंसी आती है, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। और इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आना चाहिए टू द एक्सटेंट वी एक्सपेक्ट, वो नहीं मिल रहा है। भक्ति कैसी करनी चाहिए? एक बात तो समझ लीजिएगा, भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति की व्याख्या तो की, अमृत स्वरूपाच, उसके पहले कहा सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति जो है ना, दूसरे ही सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र के दूसरे ही सूत्र में नारद जी कहते हैं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूप। भक्ति जो है वो परम प्रेम रूपा है, सुप्रीम लव। और प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम ऐसे किया जाता है जो प्रियतम को पसंद हो। मुझे पसंद हो ऐसा प्रेम तुम करो, ये नहीं हो सकता। कोई भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद से, अपने प्रियतम से नहीं कह सकता कि दिस इज द वे आई विश टू लव यू and make sure that you are happy with it and you are content with it. No. प्रेमी में हमेशा अपना विचार नहीं होता, प्रेम में हमेशा प्रियतम का विचार होता है, प्रेमास्पद का विचार होता है। उसको कैसे सुख मिले? तो भक्ति में भगवान को प्रेम करना है, भक्ति करनी है जिससे प्रभु प्रसन्न हो। तो ऑब्वियसली भक्ति ऐसी करनी पड़ेगी जो प्रभु को ठीक लगे, जो प्रभु को अनुकूल हो। हम अपनी मर्जी से भक्ति करते रहें, हमें यह ठीक लगता है, दिस इज व्हाट आई फील राइट, अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी दिस। नो, दैट्स नॉट द वे टू लव, दैट्स नॉट द वे टू वर्शिप। प्रभु से पूछिए, प्रभु आपको क्या ठीक लगता है, प्रभु आपको क्या पसंद है, वैसी भक्ति। और प्रिय स्वजनों, 12वें अध्याय में, इन दिस 12th chapter ऑफ भगवद गीता, श्री कृष्ण कैटेगोरिकली नरेट्स, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने वर्णन किया है उनको कैसी भक्ति प्रिय है।
भक्तास्ते तीव में प्रिया, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे भक्त मुझे अतीव प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। कैसे भक्त हैं वो, ये जानने के लिए आइए भगवद गीता के पहले श्लोक में हम प्रवेश करें। आप सभी को भगवद गीता के श्लोक भेजे गए हैं, फिर भी हमारी सभी की प्रिय परम भगवदीया बहना शैला श्लोक का उच्चार करेगी अपने बहुत मधुर स्वर में और क्लियर प्रोनाउंसिएशन में। जो लोग भी पूज्य श्री भाई चैनल पर या तो संस्कार आस्था ये सब टीवी चैनल पर प्रवचन सुनते रहते हैं, उन सबके लिए बहना शैला परिचित हैं। अपने सभी प्रवचनों में, विशेष करके भगवद गीता के प्रवचन में, उपनिषद के प्रवचनों में, और अभी जो विष्णु सहस्त्र नाम के प्रवचन चल रहे हैं उसमें भी शैला अपने स्पष्ट और मधुर उच्चार में श्लोकों का पारायण सबको करवाती है। तो यहाँ भी अमेरिका तो शैला नहीं आ पाई, क्या पता फ्यूचर में हम उसको बुलाएं भी साथ में, लेकिन अभी ऑनलाइन शैला अपने घर पर बैठी है और आप सभी के साथ वो भी आपसे सब जुड़ी हुई है। तो पहला श्लोक शैला बोलेगी। स्क्रीन पर भी श्लोक आपको दिखाई देगा और श्लोक जो एक्चुअल जो है वो भी आपके भेजा गया है। आप कोई भी स्पॉन्सर या वॉलंटियर्स को, गिरीश भाई मोदी, किसी को भी आप पूछ करके जान सकते हैं उनके पास से, और आपको ये पुस्तक भी मिलेगी 12 अध्याय की। आई वुड रिक्वेस्ट कि यदि आप उसको प्रिंट आउट करके सामने रखोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। जैसे हरि मंदिर में सामने बैठकर आप नोट्स बनाते रहते हो, ऐसे भी वो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो बहना शैला आइए भगवद गीता के 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक बोले हम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। बहुत सुंदर। प्रिय स्वजनों, 12वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ है। अर्जुन भगवान से पूछता है, प्रभु ये भक्ताः एवं जे जो भक्त आपके, एवं का अर्थ है इस तरह, इन दिस वे, सतत युक्ता निरंतर आपसे जुड़े रह करके, त्वाम पर्युपासते आपकी भक्ति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, च और ये अक्षरम अव्यक्तम अपि, दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्षर, 8वां अध्याय ही पूरा है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर नहीं होता, दैट विच नेवर डिटीरियोरेट्स, अविनाशी, अव्यय, अव्यक्त,
अव्यक्त का अर्थ है निराकार, इसकी भी उपासना करते हैं। तेषाम योगवित्तमाह के, प्रभु ये दो प्रकार के भक्त हैं, उनमें योगवित्तमाह के, योग को श्रेष्ठ रूप से जानने वाले कौन हैं? देखिए, योग तो आप सब जानते हैं, योगविद, योगवित्तर, योगवित्तम। योग विद टू नो एंड तम इज सुप्रीम। सबसे श्रेष्ठ रूप से योग को जानने वाले कौन हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। प्रिय स्वजनों, जैसा मैंने कहा 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक 55वें में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, कंक्लूड किया था, जिससे 11वां अध्याय मत कर्म कृन मत परमो मदभक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, ये श्लोक की पूरा भाष्य मानो 12वां अध्याय, क्योंकि वो भक्ति का बीज है, वो श्लोक, वो भक्ति का सूत्र है। और उसी सूत्र की व्याख्या, उसी का इलेबोरेशन यहां आपको 12वें अध्याय में प्राप्त होगा। 11वें अध्याय के अंतिम ये 55वें श्लोक में भगवान ने कुल 5 बातें कही। सबसे पहली बात, और 5 जो बातें कही उनमें से 3 बातें प्रभु संबंधी हैं और 2 बातें संसार संबंधी हैं। मत कर्म कृत, भगवान कहते हैं मेरे कर्म करने वाला। मत परमः, मेरे परायण। तीसरा कहा मद भक्तः, मेरा भक्त। संगवर्जितः, ये पहले मत कर्म कृन, मत परमः और मत भक्त, ये तीनों में मत 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 अर्थ मत और मेरा, मेरे कर्म करने वाला, मेरा भक्त और मेरे परायण व्यक्ति, ये 3 प्रभु के संबंधी हैं। और अभी 2 जो हैं वो भगवान संसार संबंधी है। संगवर्जितः, आसक्ति रहित, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। और निर्वैरः, वैर रहित, विदाउट एनिमोसिटी, विदाउट विंडिक्टिवनेस, ये संसार के प्रति है। ये 5 गुण जिसमें हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे पाते हैं, दे अटेन मी। अब अर्जुन ये पूछना चाहता है कि प्रभु उसमें जो आपने कहा मत मत मत, मत कर्म, मत परमः और मत भक्तः, तो ये मत जो है मेरा आपने कहा, वो मेरा क्या है? वो सगुण ब्रह्म है या निर्गुण ब्रह्म है? ये संसार में 2 प्रकार के भक्त दिखाई पड़ते हैं। आप all the religions of the world, if you want to classify broadly, you can classify into 2. There is a one group of people who worship God in form, in whichever form, but in a form, mostly in human form, sometimes in other forms also. लेकिन सगुण साकार की उपासना करते हैं, वो मूर्ति के रूप में उपासना करते हैं, दे वर्शिप। और कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, दे वर्शिप द सुप्रीम, दे वर्शिप द डिवाइन इन अ फॉर्मलेस वे। वे कोई मूर्ति की उपासना नहीं करते, निर्गुण की उपासना करते हैं, बट उपासना तो करते हैं। दे आर ऑल्सो बिलीवर्स, दे ऑल्सो वॉन्ट टू इवॉल्व देमसेल्व्स। अर्जुन यहां पूछना चाहता है कि प्रभु ये जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में आपने कहा मत, ये मत कौन है? सगुण है या निर्गुण है? इसको निश्चय पूर्वक मुझे जानना है। क्यों? तेषाम के योगवित्तमः, 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में जो प्रश्न पूछा, तेषाम के योगवित्तमः, हु इज द बेस्ट अमंग देम? सभी देखिए, एवं सतत युक्ता, एवर कनेक्टेड, everyone is connected with the divine,
whether they accept it or not, whether they realize it or not, whether they admit it or not, is a different story. But the rule of existence, the fact of life is that everyone is connected with the divine. आपके घर में छोटे से छोटा बल्ब, इवन अ नाइट लैम्प, the very fact that it is shining, the very fact that it is emitting light, it means that it is connected with the reservoir of electricity. It is connected with the main supply. Otherwise, even the smallest of the bulb cannot emit light. ठीक इसी तरह हम बात केवल मनुष्यों की करें, लेकिन हकीकत तो है कि एनी लाइफ, any form of life, the very fact that it exists, कोई भी जीव हो वो जी रहा है, it means that it is connected with the Supreme. अन्यथा उसका जीवन संभव ही नहीं है. अब वो रियलाइज करना, अनुभव करना, एडमिट करना, और उससे भी आगे बढ़कर है टू फील ऑनर्ड कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं. ये बहुत बड़ी बात है. यदि कोई लाइट का बल्ब ये कह दे कि मैं तो शाइन कर रहा हूं, बट मेरी अपनी ताकत से अपने बलबूते पर कर रहा हूं, हंसी आएगी आपको. जो समझदार है उसको हंसी आएगी, लेकिन वो बल्ब बोल तो रहा है और उसको कुछ आसपास के लोग सुन भी रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहा है इसलिए 4-5 लोग सुन भी रहे हैं. ये संसार में कुछ एरोगेंट लोग, अनग्रेटफुल लोग कहते हैं देयर इज नो गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड. कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना. कुछ लोग सुनते भी हैं उनको, लेकिन वो ठीक ऐसी बात है जैसे वो बल्ब कहे कि आई हैव नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिसिटी, आई एम शाइनिंग ऑन माई ओन. जो समझदार है उसको तो पता है कि अरे तुम जो कह रहे हो कि मैं हूं, ये किस बलबूते पर कहते हो. जब तुम नहीं थे तब तुम कह सकते थे ना. भविष्य में एक क्षण ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नहीं कह सकोगे कि मैं हूं, तब तुम्हारा कहां गया पावर. यदि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा होना होता, if your existence were in your own hand and you are powerful enough to control your existence, क्या कभी तुम अपने अस्तित्व को छोड़ते? नहीं छोड़ते. अरे अस्तित्व को छोड़ने की बात तो दूर, तुम वृद्ध भी होते. तुम कभी अपने बाल को सफेद होने देते? तुम कभी अपनी स्किन पर रिंकल्स आने देते? तुम्हारे न चाहते हुए भी ये सारी बातें हो रही है. दैट इट सेल्फ प्रूव्स दैट देयर इज अ बिगर पावर दैट कंट्रोल्स यू. तो ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, द सुप्रीम एनर्जी, परम आत्मा, परम ऊर्जा, परम शक्ति, वो कैसी है? उसकी भक्ति जो करें वो सगुण रूप में करें या निर्गुण रूप में करें, और ये भक्ति करने वाले हैं वो कौन श्रेष्ठ हैं उनमें? ये प्रश्न अर्जुन का है. प्रिय स्वजनों, भक्ति योग का जो हम आरंभ करें, संस्कृत में भक्ति शब्द बड़ा प्यारा है. एक समय था जब भी मुझे कोई संस्कृत डिक्शनरी खरीदनी हो तो उसमें सबसे पहले आई वुड गो एंड चेक कि इसने भज धातु के कितने अर्थ दिए हैं इस डिक्शनरी में, क्योंकि संस्कृत इज सच अ रिच लैंग्वेज. एक एक शब्द के, एक एक रूट के इतने विविध अर्थ होते हैं, और फिर वो विविध अर्थों में से, रूट में से जब वर्ड इवॉल्व होता है, व्युत्पत्ति होती है. प्रिय स्वजनों, संशोधन करके आप सबके लिए भज धातु के 10 अर्थ लाया हूं अभी.
और ये जो 10 अर्थ हैं भज धातु के, वो सारे भक्ति में समाहित हैं। कृष्ण को जो प्रिय है ऐसी भक्ति, जो प्रभु को प्रसन्न करे ऐसी भक्ति, वैसी भक्ति जो करके आप भगवान कहे कि तुम मेरे प्रिय हो। हम तो सब कहते हैं कि वी लव यू कृष्णा, लेकिन कभी यह भी तो सुनना है ना कि कृष्ण हमसे कहे आई लव यू टू। वो यदि सुनना हो तो ऐसी भक्ति कैसे, उसकी भज धातु के लक्षण समझिए। व्याकरण, अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर, भज धातु का सबसे पहला अर्थ है भज सेवायाम। भज इज टू सर्व। जहां सेवा करने का भाव नहीं होता वहां भक्ति संभव ही नहीं। और सेवा कब करता है कोई? सेवा तब आता है जब when you put the person on a little higher pedestal than you are। सेवा कोई व्यक्ति तब करता है जब व्यक्ति का अपना अहंकार कम हो। किसी को एक गिलास पानी भी लाकर देना, यह सेवा का छोटे से छोटा प्रकार है, लेकिन वो कब करोगे आप? When you want to serve that person, when will you do that? When you put your ego aside। ये तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ना, मैं क्यों तुम्हें दूं, हेल्प योरसेल्फ, ले लो अपने आप। अहंकार होगा तो कभी भी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। सेवा में सबसे पहले तो अहंकार को छोड़ना होता है। भज सेवायाम। इसलिए भक्ति में भी अहंकार सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है, बम्प है। बात आएगी अध्याय में, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे। दूसरे, भज इज टू डिवाइड। इसके ऊपर शब्द बनता है विभाजन, टू डिवाइड। What is right, what is wrong, what is useful, what is useless, what is precious, what is not। ये डिवीजन जो कर सके, भज टू डिवाइड, ये अति आवश्यक है। जो व्यक्ति ये डिवीजन नहीं कर सकता, क्या मुझे लेना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, what is important to me, what is important for my progress and what is not, ये जो तय नहीं कर सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। भज टू डिवाइड, विभाजन। भज इज टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। जो परिस्थिति में मेरा प्रभु मुझे रखे, आई एक्सेप्ट इट। इसलिए मैंने कई बार कथाओं में कहा है, कंप्लेन करने वाला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। बिकॉज कंप्लेन में एक ही बात है, आई डोंट एक्सेप्ट। तभी तो कंप्लेन आती है ना। पत्नी भोजन बना के रखे टेबल पर और पति यदि कंप्लेन शुरू कर दे, सब्जी में नमक ज्यादा है, दाल पतली हो गई है, चावल चिपक गए हैं, ये जो शुरू हुआ उसका अर्थ आई डोंट एक्सेप्ट दिस। तभी तो फरियाद होती है। और जो बार बार दिन में करता रहे वो प्रेम कब करेगा? जहां फरियाद हो वहां प्रेम कभी संभव नहीं होता। प्रेम करने के लिए फरियाद से मुक्त होना आवश्यक है। एक्सेप्ट इट, जो भी तुमने किया, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, तुम मुझे प्रेम करती हो एंड यू आर माई वेल विशर, सो वॉट एवर यू डू इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी। ये इतनी समर्पण भाव, ये भी भक्ति का एक अलग अर्थ है। स्वीकार का भाव ना हो,
मां अपने पुत्र के लिए भोजन परोसे और मामा यू हैव चेक्ड एवरीथिंग इज ऑल राइट, पानी ला के दिए, तूने देखा ना, इज इट बॉइल्ड, इट इज प्योरिफाइड, ये पूछे उसका अर्थ है कि इसको श्रद्धा नहीं है। पता होना चाहिए मेरी माता ने मेरे हाथ में पानी का ग्लास दिया है तो इट मीन्स दैट इट इज गुड फॉर मी। स्वीकार करना। मेरी माता ने करेले की सब्जी भी यदि मेरी प्लेट में परोसी है तो इट इज गुड फॉर मी। मॉम व्हाई डिड यू डू दिस, ये कहने का अर्थ ही यू डोंट ट्रस्ट मॉम। और हम तो बार बार भगवान के सामने फरियाद ही करते रहते हैं, बार बार हम प्रभु के सामने शिकायत ही करते रहते हैं। भक्ति कैसे होगी दृढ़? भज इज टू एक्सेप्ट, भज इज टू रिसोर्ट टू, शरण में जाना। कभी तो उसको स्वीकारो, तभी कभी तो उसकी शक्ति को स्वीकारो। और शरण में कब जाते हैं? जब व्यक्ति को अपनी शक्ति की मर्यादा पता चले, और अपनी मर्यादा जहां है वो पूर्ति, वो सप्लीमेंट परमात्मा करेगा ये पता चलेगा, तभी तो शरण में जाओगे। भज इज टू रिसोर्ट टू, भक्ति में समर्पण मुख्य है। भज इज टू ऑब्जर्व, निरीक्षण करना। प्रिय स्वजनों, जिसके भी प्रति प्रेम होगा ना, उसको निरीक्षण करने की इच्छा आपको होगी ही। पहला पहला जो इन्फेचुएशन भी होता है ना, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इन्फेचुएशन भी होता है। प्रेम का इकरार भी नहीं किया है, एडमिट भी नहीं किया है प्रेम को, लेकिन इन्फेचुएशन होता है ना, कैसे एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व। और वही जब मां अपने बालक को, पिता अपने पुत्र को, छोटा सा हो, अब पुत्र तो सो रहा है 6 महीने का, द टॉडलर, उसको तो पता भी नहीं है कुछ, लेकिन माता पिता बार बार आके देखते हैं क्या कर रहा है, लुक एट द वे ही स्लीप्स, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये क्या बता रहा है? दिस शोज लव, ये भक्ति है, टू ऑब्जर्व। परमात्मा की लीलाओं को भी ऑब्जर्व करना। ये विश्व में जो भी हो रहा है मेरे परमात्मा की लीला है, मेरा प्रभु कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर। भज इज टू एंजॉय। एक एक शब्दों के लिंक भी समझते जाना। दादी मां अपना ग्रैंड चाइल्ड सो रहा है, ऑब्जर्व करके शी एंजॉयज। छोटे से बालक ने से ये क्या तुम, लुक एट दिस, क्या लुक एट दिस, तुम भी ऐसा ही करती थी व्हेन यू वर अ टॉडलर एट दैट एज। लेकिन वो जो ऑब्जर्व करके छोटी छोटी उसकी बातों को एंजॉय करना, परमात्मा में, प्रभु की जो सृष्टि की लीला है उसमें धीरे धीरे जो भी ऑब्जर्व करो उसको एंजॉय करो, एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो। ये भक्ति है। भज इज टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना। भज इज टू वेट अपॉन। भक्ति में प्रतीक्षा मुख्य है। टू वेट अपॉन, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, टू वेट पेशेंटली। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोग इतने इम्पेशेंट हो गए हैं, इतने अधीरे हो गए, थोड़ा सा भी अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार न हुआ, उन्होंने जो सोचा था वो न, तुरंत कहेंगे आई लॉस्ट माई हेड। मैं धीरे से पूछता हूं, डिड यू एवर हैव हेड? था तेरा दिमाग? क्योंकि तुम ही कह रहे हो यू हैव लॉस्ट इट, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी कई बार लॉस्ट किया होगा, और इतने बार लॉस्ट करके करते बचा ही नहीं होगा तुम्हारा दिमाग। इसलिए जब बचता नहीं है तो धीरे धीरे छोटी छोटी बात में तुम यू लॉस्ट इट, यू लॉस्ट इट, यू लॉस्ट इट, एंड एवरी टाइम यू लूज इट
कितना बचा फिर तुम्हारे पास? बचा ही नहीं है। एंड इट शोज इन योर बिहेवियर। भज इज टू वेट अपॉन, प्रतीक्षा करना। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक भक्ति मार्ग में है राधा जी। इतना प्रेम करती हैं और कृष्ण नहीं मिलते तो भी कोई बात, कभी भी शिकायत नहीं। टू वेट, प्रतीक्षा। मुझे पता है प्रभु आएंगे। और राधा का अवतार जो कलयुग में हुआ, मीरा जिसको हम राधा का अंश समझते हैं, मीरा ने कितनी प्रतीक्षा की। मीरा की एक सखी थी, लीला, सेविका थी उसकी। कई बार वो मीरा से पूछती, बाईसा, राजस्थान में शब्द है बाईसा, बहुत आदर पूर्वक जो कहें वो बाईसा, या मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल कहती रहती हो, उनसे बातें करती हो, उनके सामने अपने पद भजन गाती हो। ये गोपाल कभी आपसे बोलते हैं? डज ही एवर रिस्पॉन्ड? मीरा ने बड़ी प्रामाणिकता से कहा, अभी तक तो नहीं बोला। तो लीला ने कहा, फिर भी तुम बुलाई जाती हो, वो तो बोलता ही नहीं है। मीरा कहती है, हाँ बात ऐसी है ना, वो मुझसे रूठ गया है, मैं उससे मना रही हूं। लीला ने पूछा, इतने वर्षों से मना रही हो, अभी तक वो नहीं माना, वो बोला ही नहीं, छोड़ दो ना। मीरा कहती है, कैसे छोड़ू? उसको रूठने में आनंद आता है, मुझे उसको मनाने में आनंद आता। वो उसका काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूं। लीला ने पूछा, लगता है तुम्हें कभी मानेगा वो? कहती है, हाँ। मीरा कहती, मानेगा, अवश्य मानेगा। वो बोलेगा तुमसे? मीरा कहती है, हाँ बोलेगा। आज नहीं तो कल बोलेगा, एक सप्ताह के बाद बोलेगा, एक महीने के बाद बोलेगा, एक वर्ष के बाद बोलेगा। और यदि न बोला, मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी कि मेरी अंतिम क्षणों में तो मेरा गिरधर गोपाल मेरे साथ अवश्य बोलेगा। वो ले जाएगा मुझे अपने साथ। कितनी प्रतीक्षा है प्रिय स्वजन, और वो प्रतीक्षा सत्य थी। वास्तविकता बनी, दिस इज अ रियलिटी, कि वही गिरधर गोपाल मीरा को ले गए। घटना मैंने सुनाई है, शायद आपने पहले कथाओं में सुनी होगी, फिर भी याद करा दूं। द्वारिका में रहती थी मीरा। रात के 9:30 बजे शयन आरती होती है, मंदिर में जाके बैठी और एक स्तंभ के पास बैठी रही। शयन आरती के बाद मंदिर बंद करना था। पुजारी ने सब भक्तों से कहा, और सब भक्तों तो निकल गए क्योंकि सबको अपने अपने घर जाना है। मीरा ना उठी, आंखें बंद करके कृष्ण का स्मरण करती हुई द्वारिकाधीश के मंदिर में ही बैठी रही। पुजारियों ने सोचा, ये तो है कोई पगली, उसका तो कोई है नहीं, कोई ढूंढने उसको निकलने वाला नहीं, उसको भी कहीं जाने की जगह तो है नहीं, बैठी रहने दो, बस चंद घंटों में तो वापस मंगला के दर्शन के लिए आना ही है, खोलेंगे मंदिर, निकल जाएगी बाहर वो। ताला मंगल किया, मंदिर बंद किया, ताले लगाए, पुजारी गए। प्रातः काल जब पुजारी आए तो उनको पता था कि वो पगली बैठी होगी मीरा अंदर, उसको निकालना है। मंदिर खोल के जब देखा, ढूंढा, दिखाई ना पड़ी मीरा। पुजारी ढूंढ कहां गई? और इतना भी बड़ा मंदिर नहीं कि कहीं खो जाए और मिले ही नहीं। नहीं मिली, आज तक नहीं मिली मीरा। कहां गई मीरा? अपने गिरधर गोपाल में, अपने द्वारिकाधीश में समा गई। इसलिए प्रिय स्वजन, आप देखना, मीरा का कोई समाधि स्थान नहीं है कि इस जगह पर मीरा को समाधि दी गई, इस जगह पे मीरा का अंतिम संस्कार, कोई नहीं मिलेगा। मीरा अपने प्रियतम में, अपने द्वारिकाधीश में समा गई। मीरा की श्रद्धा सही निकली।
जीवन भर मैं उससे मना रही हूं मेरे गिरधर गोपाल को, और मेरी अंतिम क्षणों में मुझे लेने के लिए वो अवश्य आएगा। और वो आया। भज धातु का अर्थ है प्रिय स्वजनों, भक्ति का अर्थ है टू वेट अपॉन। भक्ति भज धातु का अगला अर्थ है टू अडोर, ओवारी जવું। गुजराती में नरसिंह मेहता, और अब केवल गुजराती तक मर्यादित नहीं रहे, नरसिंह मेहता को पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। गोपियों के मनोभाव को अद्भुत रूप में नरसिंह मेहता व्यक्त करते हैं। हूं तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटका ने, ओवारी जब, टू अडोर। एंड लास्ट but definitely not the least, भज आमर्दन, भज टू लव। आमर्दन शब्द पर मैं आता हूं। भज टू लव। भज धातु का अर्थ है प्रेम करना। प्रेम यदि न करे तो भक्ति कर ही नहीं सकता। प्रेम तो प्री क्वालिफिकेशन है भक्ति का। एक मनुष्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जी के पास पहुंचा और उसने कहा, आचार्यवर, भगवान आप मुझे भक्ति करना सिखाएं, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। रामानुजाचार्य जी ने उससे पूछा, बहुत अच्छी बात है, तुम भक्ति करना चाहते हो, एक प्रश्न का मुझे उत्तर दो, तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा, छी 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 छी, नहीं नहीं नहीं, वो चक्कर में तुम्हें पड़ा ही नहीं, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी पूछते हैं, ठीक से याद करो, तुमने किसी को तो प्रेम किया होगा, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, संतानों को, किसी को तो नहीं। नहीं, वो संसार की माया में तुम्हें पड़ा ही नहीं। बहुत प्रयत्न पूर्वक मैंने आपको अपने आप को बचाए रखा है, मैंने कभी प्रेम की झंझट की ही नहीं, आप मुझे भक्ति करना सिखाइए बस। श्रीमद् राजा रामानुजाचार्य कहते हैं, भाई तू मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे मुझे। तूने यदि कभी किसी को प्रेम किया होता तो वो तेरे प्रेम की सरिता को मैं परमात्मा की दिशा में मोड़ देता, वो भक्ति बन जाती। लेकिन तूने किसी को प्रेम ही नहीं किया, तू बिल्कुल वीरान सा है। यू आर सच अ ड्राई अनइंटरेस्टिंग पर्सन। आई कैन नॉट टीच यू डिवोशन। सूखा व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के लिए तो आर्द्रता चाहिए। यू नीड टू हैव दैट इनर मॉइस्टनेस। भज इज टू लव। प्रिय स्वजनों, प्रथम श्लोक के अर्थ को और डिटेल में हम देखें उसके पहले आइए बहना शैला एक 2-3 मिनट के लिए भगवान की सुंदर धुन कोई गुनगुनाएं हम, और फिर श्लोक में आगे प्रवेश करें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। सबको दिखा। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। जय यदुनंदन जय हरि ओम। जय यदुनंदन जय हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम।
नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, गोपाल हरे, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम, राधे गोविंद हरि नारायण 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 ओम, नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, 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 जय जय गोपाल हरे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रथम श्लोक में भक्ति जो पूछा है, वेद में भी प्रिय स्वजनों कहा गया, भक्ति रस्य भजनम तदैहिक अमुष्मिक फलभोग त्याग पूर्वकम अमुष्मिन मनः कल्पनम। भक्ति ही अस्य भजनम, यह भजन है भक्ति। और क्या है वो? तद ऐहिक अमुष्मिक फल भोग त्याग पूर्वकम अमुष्मिन मनः कल्पनम। वो लोक परलोक के फल भोग के त्याग से और ईश्वर में मन लगाने की प्रक्रिया है। दो बातें आई, लौकिक फल का त्याग और अलौकिक ऐसे परमात्मा में मन को स्थिर करना। टू गिव अप व्हाट इज बेसर्स एंड टू सीक व्हाट इज सुप्रीम, इसको कहते हैं भक्ति। धातु पाठ है भज सेवायाम। भक्ति शब्द में भज धातु है। मैं थोड़ा संस्कृत ग्रामेटिकली ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भक्ति शब्द में धातु है भज और स्त्रीलिंग में तीन प्रेमार्थक प्रत्यय है। ती जो है ना, वो तीन है, वो इट सिंबलाइजेस लव। तो भज धातु का अर्थ है सेवा और तीन प्रत्यय का अर्थ है प्रेम और स्त्रीलिंगी है, इट इज अ फेमिनिन जेंडर वर्ड। तो उसका सूचित अर्थ है वशत्व। स्त्री का हमेशा एक ये भाव होता है, उसके अंतःकरण की होना, ये अंतःकरण का भाव है कि आई वॉन्ट टू बिलोंग टू समवन। दिस इज अ फेमिनिन इमोशन। स्त्री हमेशा अपने आप को सौंपती है, वो त्याग करती है, अपने आप को सौंपती है। देखिए, जिस परिवार में जन्म हुआ, बली पली हुई, वो सब छोड़ करके, उसको त्याग करके पति के साथ चलती। अब वो त्याग किया, उसके साथ उसने नाम भी, पति जो नाम देता है वो नाम स्वीकार करती है। पहले तो विवाह के बाद पत्नी का नाम बदल जाता था, सरनेम बदल जाती थी,
अब आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोग अपने अस्तित्व की मारामारी करते हैं। नाम नहीं बदलते, चलो ठीक है, सरनेम नहीं बदलते, अब दो दो सरनेम रखते हैं। अब जानते हो वो, अब छोड़नी नहीं थी तो फिर घर पे ही बैठी रहती ना, क्यों फिर तुम ये सब धमाल की? करना भी है और छोड़ना नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो मैरिज के बाद की सरनेम अभी एडॉप्ट नहीं करते, वो मेडन सरनेम, बिकॉज आई एम नोन बाय दिस सरनेम। इतनी तुम्हारी नोन की जो अभिलाषा है, तुम्हारी प्रसिद्धि की अभिलाषा है, दे जस्ट डोंट एक्सेप्ट मैरिज के आपके सरनेम है नहीं। तो पहले तो बदल लेते थे, नाम बदलते थे, सरनेम बदलते थे, फिर नाम नहीं बदलते, केवल सरनेम बदलते, उसके बाद दो सरनेम, और अब जमाना यह है दे डोंट चेंज द सरनेम, क्योंकि उनको पता है ना चेंज करके क्या फायदा, ये जो दो 4 साल 5 साल चले तो फिर वो मेडन सरनेम ही रखो। और एक तो बार बार फिर वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं ना कि कितना ये तुम्हारा दूसरा मैरिज है, मेरा तीसरा है, उसका चौथा है, तो इतनी कितनी सरनेम बदलेगा। दे जस्ट डोंट वांट टू बर्डन गवर्नमेंट विद दिस प्रोसेस कि बार बार पासपोर्ट में सरनेम चेंज कराओ, आईडी में सरनेम चेंज कराओ, उसके बदले वो एक ही रखते हैं। जब तक चला तब तक ठीक है, नहीं तो सरनेम तो वही चलती रहेगी। मजाक को थोड़ा दूर करें। लेकिन यदि ये बदलने की अभिलाषा ना हो, छोड़ने की अभिलाषा ना हो, तो भक्ति किस काम की? तो प्रिय स्वजनों, भज धातु का अर्थ है सेवा, 3 प्रत्यय का अर्थ है प्रेम, और फेमिनिन जेंडर जो स्त्रीलिंगी है उसका अर्थ है वशत्व। ये तीनों का जब समन्वय करें, व्हेन वी कंबाइन दिस 3, भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रभु के वश होकर, अर्थात प्रभु के बनकर, अपने आप को छोड़कर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना। ये 3 बातें आती है, स्वयं को छोड़ना, उसके बनना और सेवा करना, इसे कहते हैं भक्ति। और प्रिय स्वजनों, याद रखना, जो वश में होता है वो ही वश कर सकता है। जो स्वयं को छोड़ता है वही दूसरे को अपना बना सकता है। जो स्वयं को छोड़ने को तैयार नहीं, वो दूसरे को क्या अपना बनाएगा? परमात्मा को अपना बनाने के लिए जीवात्मा को पहले स्वयं को छोड़ना पड़ता है, अपने आप को छोड़ना पड़ता है। तो किसी के वश हो जाओ, कहो हम तुम्हारे हैं, अब हम अपने नहीं रहे, हम तुम्हारे हुए। और प्रिय स्वजनों, कई भक्तों के और अपने खुद के अनुभव से कहता हूं, श्री कृष्ण एक ऐसे देव हैं जो उनकी सेवा करता है, कृष्ण उनके सेवक हो जाते हैं। जिन्होंने कृष्ण की सेवा की, कृष्ण उनकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। एकनाथ ने कृष्ण की सेवा की तो एकनाथ के वहां प्रभु सेवक बनकर आए, शिखंडिया घर के नौकर बन के आए, रसोई करने वाला बनकर आए प्रभु उनके वहां। नरसिंह मेहता ने प्रभु की कृष्ण की सेवा की तो कृष्ण नरसिंह मेहता के सेवक बन करके कुंवरबाई का ममेरा भरने के लिए, नानी बाई को मायरो, उनके सेवक बन गए। वचन दिया है ना प्रभु ने भगवत गीता में, 4थे अध्याय का 11वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे साथ जैसा वर्तन करता है मैं उसके साथ वैसा वर्तन करता हूं। इसका अर्थ, यदि आप कहोगे कि प्रभु हम आपके हैं, तो भगवान कहेगा मैं भी तुम्हारा हूं। यदि आप कहोगे कि कृष्ण हम आपकी सेवा करते हैं, कृष्ण कहेंगे मैं तुमसे अधिक तुम्हारी सेवा करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजा, यही भक्ति का आनंद है।
श्रीमद् भागवत के भी 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्श्रियः सत्पतिं यथा। दृष्टांत भी कितना सुंदर दिया। सत्श्रियः स्त्रियः, अच्छी स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां जैसे अपने पति को समर्पित हो जाती हैं और पति के अंतःकरण को जीत लेती है, ऐसे प्रेम पूर्वक जो मुझे अपने हृदय में बांध कर रखता है, ऐसे समदर्शनाः साधवः, समदर्शी साधुजनों की भक्ति ने, उन समदर्शी साधुजनों ने अपनी भक्ति से मई निर्बद्ध हृदय, मेरे हृदय को बांध लेते हैं वे लोग, वे मुझे वश में कर लेते हैं। इसलिए प्रिय स्वजनों, भक्ति ये प्रभु को वश करने की शक्ति है। अर्जुन जो प्रश्न पूछता है परमात्मा से कि इसकी भी बात मैं करूं आपको, भक्ति के जो फल हैं वो, भक्ति ही भगवान के तत्वज्ञान का साधन है। भगवान को तत्व से जानना। एक बात याद रखना, संसार में भी, इफ यू रियली वांट टू नो द पर्सन इन एंड आउट with total transparency, the only way is through love. जिसको आप प्रेम करते हो और सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि आप प्रेम कर रहे हो, तब वो व्यक्ति सारे पर्दे हटा देता है, सारे मोहरे हटा देता है। ये तो हम सब जानते हैं, संसार के सामने जब हम जाते हैं तो कितने मोहरे लगा कर जाते हैं। ये स्वजनों, पति पत्नी में भी यदि प्रेम ना हो ना, तो दोनों को मोहरे से बात हो रही है। They don't put that, they don't express their real self in front of each other if they don't love each other. उसमें भी एक प्रकार की फॉर्मालिटी होती है, एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, अनसीन डिस्टेंस। Though they share the same room, though they live in the same home, but they are miles apart if they don't love each other. अब जब पति पत्नी में ही प्रेम ना हो तो एक प्रकार की आर्टिफिशियलनेस आ जाती है, एक प्रकार की कृत्रिमता आ जाती है। तो फिर संसार जिसके साथ प्रेम ना हो, कितना दिखावा आ जाता है, कितनी कृत्रिमता आ जाती है, और हम सब जानते हैं। मैरिज रिसेप्शन में जब कोई मिले और Oh, how are you? I was so missing you. Really? Not really. लेकिन वो दिखाते कितना है, क्या है? ये कृत्रिमता है, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम हो वहां कहना पड़ता है क्या, I was missing you? अरे तुम शायद तुम शरीर से दूर थे, लेकिन मन से तो निरंतर मेरे पास थे। भगवान को जानना होगा, यथार्थ रूप से जानना होगा, तत्वतः जानना होगा। प्रिय स्वजनों, शास्त्रों से नहीं जान सकते, और कोई रास्ता नहीं है। पुस्तकें पढ़ पढ़ के भगवान को नहीं जाना जा सकता। प्रेम करो, प्रभु स्वयं आपके सामने प्रकट होता जाएगा। और ये बात भी जो मैं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के आधार पर कह रहा हूं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। शैला तू बोल। शैला बोलती है ना, श्लोक बड़े अच्छे लगते हैं, सुनने में बड़े प्यारे लगते हैं। शैला 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन द 55th वर्स ऑफ द 18th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, भक्त्या माम अभिजानाति। माम अभिजानाति, मुझे कैसे जान, अच्छी तरह से मुझे कैसे जानते हैं? भक्त्या, भक्ति से, और यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से, जैसा मैं हूं वैसे, और ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, उसके बाद में मुझे तत्व से जानकर, नोइंग मी फंडामेंटली, नोइंग मी विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी, विशते तदनंतरम, जो मुझे स्पष्ट रूप से जान लेता है ना, वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकता, वो मुझसे एक ही हो जाता है। विशते लिटरल मीनिंग इज टू विश, टू एंटर, वो मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। ईश्वर जैसी दिव्य शक्ति को यदि अच्छी तरह से जान लो, कैन यू स्टे अवे? अरे संसार में भी किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से जान लो, उसके प्रति प्रेम निर्माण हो, तो आप तुरंत उसको लिपट जाना चाहते हैं, उससे एक हो जाना चाहते हैं। शरीर की मर्यादा है, फिर भी एक हो जाना चाहते हो आप। जीवात्मा यदि परमात्मा को स्पष्ट रूप से जान ले, तत्वतः जान ले, भक्ति से जान ले, परमात्मा की महिमा का पता चले, क्या अब ये जीवात्मा परमात्मा से अलग रह सकता? विशते तदनंतर, प्रविष्ट हो जाता है परमात्मा तत्व में। ये भक्ति का फल। और भक्ति अपना स्वयं, नारद भक्ति सूत्र में 30वें सूत्र में नारद जी कहते हैं स्वयं फल रूपते इति। भक्ति का फल क्या है? अरे भक्ति ही भक्ति का फल है। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का 29वां श्लोक, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका भाष्य करते हुए महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भक्ति का सबसे विशेष महात्म्य जो है, the most important and the highest outcome of devotion is स्वतंत्र ऐसे परमात्मा को भक्ति अस्वतंत्र बना देती है। ये तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ऐसे परमात्मा को भी वो भक्त के वश बना देती, अस्वतंत्र बना देती। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बाल लीलाओं में 9वें अध्याय में, जब प्रसंग तो बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो, कन्हैया ने अपने घर में ही मक्खन की मटकी फोड़ी और यशोदा मैया को पता चल गया, तो सब बालकों के सन्मुख यशोदा जी ने लालन को रस्सी से बांधा उलूखल के साथ। उस समय सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता। भृत्य का अर्थ है भक्त, अपना व्यक्ति, उसके वश। स्ववशे नापि कृष्णेनम यस्येदम सेश्वरम वशे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र हैं, वे स्वयं तो परम स्वतंत्र है, इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व उनके कंट्रोल में है, उनके वश में है। फिर भी मां यशोदा के प्रेम से वो रस्सी से बंधन में आ गए। ऐसा करके उन्होंने विश्व को बताया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। संपूर्ण विश्व को कंट्रोल करने वाला ये सुप्रीम पावर, जो उसको प्रेम करता है ना, उसकी वश में आ जाता है। भक्ति का आनंद अवर्णनीय है।
प्रभु को अपना बना लेना। संसार में यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो तो उसका आनंद कितना होता है व्हेन यू मीट योर लव्ड वन। तो परमात्मा से प्रेम हो और परमात्मा को अपना बना लेना। सच पूछो तो लोग भक्ति ठीक से इसलिए नहीं करते कि उनको भक्ति का रस से ही पता नहीं। नरसिंह मेहता बहुत सुंदर कहते हैं, ए रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने शुक जोगी रे, कई एक जाने व्रजनी रे, गोपी भणे नरसइयो भोगी रे। प्रिय स्वजनों, आइए ये भक्ति के रस का आनंद लेने के लिए, तो अर्जुन ने पहले श्लोक में जो प्रश्न पूछा है याद रहे। एवं शब्द जो कहा, पहला शब्द प्रथम श्लोक का, एवं सतत युक्ता, ये एवं इति अतीतानंतर श्लोकेन उक्तम अर्थम परामृशति मत्कर्म कृत इत्यादि न। एवं जो अर्जुन का एवं का अर्थ है संस्कृत में इस तरह, thus, और इन दिस वे। इन दिस वे अर्थात जो प्रभु आपने पहले बताया कि इस तरह जो भक्ति करते हैं आपको, मत कर्म कृण मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव, ये जो आपने बताया, इट रिफर्स टू द आइडिया सेट फोर्थ in the immediately preceding verse, that is the 55th verse of the 11th chapter. दूसरी बात, अर्जुन का ये जो प्रश्न है वह उपास्य के बारे में नहीं है, उपासक के बारे में। आप कैसे हो ये प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। प्रभु आप सगुण हो कि निर्गुण हो ये अर्जुन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अर्जुन ने तो भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर दिया। उसके मन में प्रश्न नहीं है भगवान कैसे हैं। उसने अपने मित्र के, अपने कजिन के रूप में भी कृष्ण को देखा है और विश्वरूप कॉस्मिक विजन में भी देखा है। सो ही हैज एक्सपीरियंस एंटायर रेंज ऑफ श्री कृष्ण। This question which is put forth by Arjun in the first verse of the 12th chapter is not regarding God. It's not regarding Krishna. It is regarding the devotee. उपासक के बारे में कि प्रभु ये दो प्रकार के जो भक्त हैं, भक्ति तो आपकी ही करते हैं दोनों, सगुण या निर्गुण रूप में, लेकिन और जो भी करते हैं वो सतत युक्ता, those who unintermittently apply themselves to you, dear Krishna, and to your work. सत्कर्म करते हैं, सतत युक्ता, निरंतर जुड़े रहते हैं। इनमें से प्रभु ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, ये भक्ता, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा, अनन्य शरणाहा संतः त्वाम यथा दर्शितम विश्वरूपम पर्युपास। आपने मुझे जो ये विश्वरूप का दर्शन कराया उस तरह से आपका ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। Whose sole refuge is yourself and who meditate on you in your cosmic form. प्रभु ये लोग, ये भक्त, पर्युपासते शब्द, परितः उपासते, अच्छी तरह से उपासना करते हैं। जैसे a wife who loves her husband, and they usually do, that's what we believe, we like to believe, जो भी करे, कोई भी क्रिया करे, वो उस क्रिया में अपने पति के प्रति प्रेम ही व्यक्त होता है उसका। कभी पति की सेवा में अपना शरीर अर्पण करके, कभी पति की सेवा में शरीर से भोजन बनाना। Even if she cleans the room, it's not for herself. It's because this is what he likes. This is how he likes.
अरे पति सामने न भी हो तो उसका चिंतन करके भी पति की सेवा में लगी रहती। पति 15 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गया है, पत्नी घर पे रह करके सास, ससुर, देवर, ननंद, जेठ, जेठानी, वो सबकी भी सेवा करेगी। क्यों? बिकॉज शी इज माई हस्बैंड्स मदर, शी इज माई हस्बैंड्स फादर, शी इज माई हस्बैंड्स सिस्टर, शी इज माई ही इज माई हस्बैंड्स ब्रदर, शी इज माई हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ। जो भी है वो सीधे पति के साथ संबंधित, और उनकी सेवा करने में अल्टीमेटली वो अपने पति की उपासना कर रहे। ठीक इसी तरह साधक जो है, भक्त है, ये आवश्यक नहीं कि आप 24 घंटे भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठे रहो। संसार के सारे काम करोगे, आपकी जो ड्यूटी है, इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर डूइंग अ बिजनेस, योर बिजनेस कैन बी अ डिवोशन। यू आर अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, योर वर्क कैन बी अ वर्शिप। वर्क इज वर्शिप, ये सिद्धांत है, इफ यू रियली नो हाउ टू मेक इट। कोई भी काम करे, टैक्सी का ड्राइवर भी जो काम कर रहा है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो उसका काम भी भक्ति हो सकता है। इफ ही फेल्स कि मेरे पास जो स्किल है उसको मैं किसी को मदद करके उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में उसकी मैं कुछ मदद कर रहा हूं, और उससे मैं पूरे ये सृष्टि के चक्र को चलाने में कुछ अपना योगदान कर रहा हूं। और जैसे भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रसाद मिलता है, ऐसे मुझे मेरा रेम्यूनरेशन मिलता है, बट दैट इज गॉड्स ग्रेस। इफ यू कंसीडर दैट दिस इज माय राइट, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। रेम्यूनरेशन की, ऑनरेरियम की ना नहीं है, रिटर्न्स की ना नहीं है, फल की ना नहीं है, लेकिन मुझे परमात्मा का प्रसाद मिल रहा है। जैसे मंदिर में जाऊं तो आप कहोगे हक से लाओ, यही लाओ, आज तो मुझे प्रसाद में बर्फी ही चाहिए, ऐसा कहते हो? नहीं, जो मिल गया वो प्रसाद है। मुझे जो कुछ आता था वो संसार में परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, और जो मुझे मिलता है वो मुझे परमात्मा का प्रसाद है। कितनी प्रसन्नता रहेगी, कितनी शांति रहेगी, और ये भक्ति बनेगी। पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। कुछ लोग ऐसे हैं कि इंद्रिय अगोचर, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो सुनाई नहीं पड़ता, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे प्रभु आपके निर्गुण निरंजन निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। Those who worship the formless। तो तेषाम योगवित्तमाः के अलग अलग भाष्यकारों ने एक प्रश्न के अलग अलग अर्थ किए हैं। केशव, मधुसूदन सरस्वती ये कहते हैं के वा साधका श्रेष्ठ। प्रभु ये दो प्रकार के भक्तों में से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा के स्वसाध्यम प्रति शीघ्रगामिनः। कौन से भक्त अपने लक्ष्य के प्रति जल्दी से पहुंचते हैं? शंकरानंद जी कहते हैं तत्र सुकरम किम साक्षात मोक्ष हेतु किम। कौन सा मार्ग सरल है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग लेना चाहिए? सगुण की उपासना या निर्गुण की उपासना? मधुसूदन सरस्वती ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। तेषाम केशाम ज्ञानम मया अनुकरणीयम। प्रभु मैं किसको फॉलो करूं? सगुण साकार की उपासना करने वाले भक्त को मैं फॉलो करूं या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भक्त को मैं फॉलो करूं? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं के अतिशयेन योगविदः, हु इज इट दैट अंडरस्टैंड्स योगा बेटर? ये प्रश्न का मुझे उत्तर प्रभु आप दीजिए। अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा प्रभु से, दूसरे श्लोक से प्रभु ने
ये उत्तर देने का आरंभ किया है। आइए दूसरा श्लोक पहना शैला, द सेकेंड वर्स ऑफ द 12th चैप्टर। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मयि आवेश्य मनः ये माम, मयि मुझमें मन लगाकर, नित्य युक्ता, पहले श्लोक में अर्जुन ने भी यही शब्द प्रयोग किया है, नित्य युक्ता, सतत युक्ता। भगवान कहते हैं ये तो बहुत आवश्यक है, नित्य युक्ता, निरंतर मुझ मेरे ध्यान में लगे हुए, ये परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त। एक एक शब्द बहुत डिटेल में समझने जैसे है। माम उपासते, those who have the supreme faith, परम श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं। माम उपासते ते में युक्ततमा मताः, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझे योगियों में भी श्रेष्ठ हैं मेरे अभिप्राय से। सबसे पहली बात भगवान ने कहा, जो मन मुझ में लगाते हैं। सच पूछो तो ये प्रश्न ऐसा है, अर्जुन ने पूछा, एकेडमिकली ठीक है प्रभु, सगुण भक्त और निर्गुण भक्त ये दोनों में से आपको कौन प्रिय है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है, एक माँ को 2 पुत्र हो या 2 संतान हो और माता से पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा पुत्र अच्छा लगता है, बड़ा बेटा अच्छा लगता है या छोटा अच्छा लगता है, whom do you love the most? अब मां को कैसा कंफ्यूजन होगा, दोनों मेरे हैं, उसमें एक अच्छा और एक कम अच्छा ऐसा हो सकता है? ऐसे भगवान से पूछा जाए कि प्रभु आपके जो भक्त हैं उसमें से कौन से भक्त आपको प्रिय लगते हैं, ये प्रश्न। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है उसका उत्तर तो प्रभु अवश्य देते हैं। पहली बात जो प्रभु ने कही, मयि आवेश्य मनः, ये मन को मुझ में लगाकर, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात कृष्ण बार बार भक्ति योग में बताएंगे। मन दे, भक्ति करना अर्थात मन देना, प्रेम करना अर्थात मन देना, बस। मन न दे सको तो प्रेम क्या करोगे, और प्रेम नहीं करोगे तो भक्ति क्या होगी। एक प्रसंग मुझे अत्यंत प्रिय है, प्रिय सुजन। आई वॉन्ट टू शेयर दैट एग्जाम्पल विथ यू। सूफी संत ये दृष्टांत देते हैं। एक शहर में अत्यंत श्रीमंत पिता था, एक्सट्रीमली रिच पर्सन, अ फादर, और उसकी इकलौती बेटी थी, द ओनली डॉटर, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, एजुकेटेड, क्लेवर, ऐसी एक कन्या थी। 22-23 वर्ष की उसकी उम्र हुई। कन्या के विवाह की बात आई और फादर एंड डॉटर 2 ही थे घर में। कन्या के विवाह की बात आई, लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई कोई अच्छा पात्र हो तो सजेस्ट करना, वी आर लुकिंग फॉर अ मैच फॉर अवर डॉटर। और जैसे ही समाज में ये बात चली, अच्छे अच्छे घर के इतने सारे प्रपोजल आए, ओ हो, क्योंकि सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, the only daughter of an extremely rich father, the girl herself was educated, clever. I mean, कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि ये कन्या को कोई छोड़ दे।
एवरीबडी वॉज ईगर टू मैरी हर। इतने सारे प्रपोजल आए, ये फादर और डॉटर तो कंफ्यूज हो गए कि इतने सारे, दोनों सब प्रपोजल को फिल्टर करने बैठे, बहुत सारे निकाल दिए। कोई फाइनेंशियली कम था तो उसको रख दिया, कोई लड़का गुड लुकिंग नहीं था तो उसको बाजू पर रख दिया, सब ऐसे ऐसे निकाल दिए। कोई एजुकेटेड नहीं था तो निकाल दिया, कोई फैमिली के बारे में समाज में अच्छी बात नहीं होती थी उसको निकाल, सब फिल्टर करते गए। फाइनली 3 लड़के ऐसे थे, सब तरह से अच्छे थे, कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, कल्चर्ड, एजुकेटेड, गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, एवरीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर इन अ बॉय। तो ये पिता पुत्री दोनों कंफ्यूज हो गए। फादर ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीनी है, यू हैव टू सिलेक्ट, ये 3 अच्छे लगते हैं, तुम तय कर लो किसके साथ विवाह करना। कन्या ने कहा ठीक पिताजी, मैं मिलती हूं तीनों से, कुछ बात पता चलेगी। द गर्ल स्टार्टेड मीटिंग दोस 3 गाइज, और एक एक को मिलती, ऑब्वियसली दूसरे को पता नहीं था, लेकिन जिस भी लड़के को मिलती तो इतना खुश हो जाता, उसकी होप बढ़ जाती कि ओह बाकी तो कई सारों को कैंसिल कर दिया है, शी डजंट इवन मीट देम, शी इज नॉट इवन रेडी टू सी देम, और मेरे साथ तो मिली है, तो वो उसकी होप बनती कि हाँ मे बी आई विल बी सिलेक्टेड, मे बी शी विल बी माई वाइफ। और प्रेम करना शुरू किया। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, होप्स बढ़ती गई। कुछ 3-4 महीने तक ऐसी मीटिंग्स चलती रही, तीनों के साथ अलग अलग अलग। तो तीनों लड़के इतने ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि वो 3 महीने से मिल रही है, हाँ कर देगी, अब तो मुझे हाँ कर देगी, आई विल बी लकी टू हैव हर एज माई वाइफ। 3 महीनों तक चलती रही। फिर अचानक ऐसा हुआ, एक्सीडेंट ऐसा हुआ कुछ कि ये कन्या का निधन हो गया, शी पास्ड अवे and she was buried, she was according to the Islamic right, so बरी किया गया उसको ग्रेव में। ये तीनों की हालत, ये लड़कों की तो देखो आप, क्योंकि तीनों को ऐसा लगता था कि मेरी ही पत्नी बनेगी। क्या स्थिति हुई होगी तीनों की। 3 में से एक लड़का था, उसने कहा अब दूसरे किसी के साथ विवाह तो छोड़ो, प्रेम भी संभव नहीं होता। आई डोंट वांट टू इवन सी एनी अदर गर्ल। यदि मैं इसके साथ विवाह करता तो वो तो इकलौती, शी वाज द ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, तो मैं भी उसके पिता की सेवा करता। अब ये बेचारा पिता अकेला पड़ गया, मैं उनकी सेवा करूं। ये लड़का उस कन्या के पिता की सेवा करने लगा। दूसरा एक लड़का था, उसको भी लगा कि अब संसार में कोई रस नहीं है। शहर में कुछ संतों की मंडली आई, तो वो लड़का उस संतों की सेवा करने लगा। उसको इतना उसमें रस आ गया कि वो फिर संतों की मंडली आगे चली, तो वो लड़का भी उन संतों के साथ चला गया, नगर छोड़ के, कि इस नगर में मुझे रहना ही नहीं, यहां रहूंगा तो मुझे उसकी याद आती रहेगी वो कन्या की, अब तो बस मैं संतों के साथ ही रहूंगा, संतों की सेवा करूंगा। तीसरा युवक था, उसको भी एक कन्या की याद आती थी, और वो तो दिन रात बस उसकी कब्र के पास बैठा रहता, रोता रहता, वहां से हटता ही नहीं। 6 महीने बीत गए। अब हुआ ऐसा कि दूसरा लड़का जो संतों की मंडली में गया था, संतों की सेवा कर रहा था, उसने अपनी सेवा से संतों को इतना प्रसन्न किया, और वो संत इतने प्रसन्न हो गए कि एक संत ने इस युवक को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम जिसको भी चाहो, किसी एक व्यक्ति को जीवित कर सकते हो। यू कैन गिव लाइफ टू 1 पर्सन ऑफ योर चॉइस। संजीवन मंत्र मिला उसको। बाकी ही क्या था, जैसे ही ये मंत्र मिला, ये लड़का सीधा वापस नगर में आया, ग्रेवयार्ड में गया, और जो उस कन्या की ग्रेव थी उसको खोद करके कॉफिन में से उसकी बॉडी निकालकर वो मंत्र बोलकर उसने पानी छिड़का, एंड लो
वो कन्या जीवित हो गई, शी केम टू लाइफ, घर गई अपने। पिता भी खुश हो गए, पूरी बात बताई कि तेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा हुआ है, ये 3 लड़कों ने ऐसा किया, अब विवाह का तो करना था। पिता ने कहा ऐसे ही हम पहले तय नहीं कर सकते थे, अब तो और तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, बेटा अब तुम तय करो तुम्हें किसके साथ विवाह करना है। विथ अ स्माइल ऑन हर फेस, इस कन्या ने कहा पिताजी आपकी बात मैंने सुनी कि मेरी एब्सेंस में इन लोगों ने क्या क्या किया, नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड। अच्छा, किसके साथ विवाह करना चाहती हो बेटा? कन्या ने कहा पिताजी मेरी मृत्यु के बाद जो युवक आपकी सेवा में आकर लग गया वो मेरे लिए भाई के बराबर है। जो युवक मेरी अनुपस्थिति में इस नगर में रह न सका, संतों की सेवा में लग गया, संतों की मंडली में लग गया, इतनी सेवा की कि उसने संतों के पास से संजीवन मंत्र लिया और उस मुझे नया जीवन दिया, वो मेरे पिता के बराबर है, बिकॉज ही हैज गिवन मी अ न्यू बर्थ। लेकिन जो युवक मेरी कब्र के पास बैठा रहा, निरंतर मुझे याद करता रहा, उसके साथ मैं विवाह करूंगी। पहले 2 अच्छे हैं बहुत, लेकिन पिताजी इन माय एब्सेंस एंड व्हेन दे वर श्योर दैट आई एम नो मोर, दे ट्राइड टू डाइवर्ट देयर माइंड इनटू समथिंग व्हिच वाज गुड, बट दे डेफिनेटली ट्राइड टू डाइवर्ट देयर माइंड। पहले युवक ने अपना मन आपकी सेवा में लगाना शुरू किया, काम अच्छा किया लेकिन मन आपकी सेवा में लगाया। दूसरे युवक ने मन संतों की सेवा में लगाया, नगर छोड़ के चला गया, ही वांटेड टू डाइवर्ट हिज माइंड फ्रॉम मी। लेकिन ये तीसरा युवक है, वो अपने मन को मुझसे कहीं दूर नहीं ले गया, उसके मन में मैं निरंतर रही, वो उसने अपना मन निरंतर मुझ में रखा। He loves me the most and I will marry him. प्रिय स्वजनों, सूफी संत ये दृष्टांत देते हैं, समझना। और सूफीज्म में प्रेमी का ये भगवान है और प्रेमी ये भक्त है। भगवान किसको पसंद करते हैं? चाहे कितने भी अच्छे काम के लिए, लेकिन डाइवर्ट तो मन कर रहे हो ना कहीं पर। भगवान पहले यहां कहा मय्यावेश्य मनो ये माम, जो अपने मन को मुझ में ही लगाए रखते हैं, ते में युक्त तमामतः, वो मेरे अभिप्राय से सबसे श्रेष्ठ हैं। हम भगवान से कहें प्रभु आज का समय तो हो गया, आने वाले 22 घंटे तक हम हमारा मन आप में ही लगा के रखेंगे, और tomorrow night, that is according to Eastern US time, Friday evening, आज आपकी थर्सडे इवनिंग है, फ्राइडे इवनिंग शार्प एट 8 PM EST हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएंगे, और ये 22 घंटे हमारा मन रेस्ट अश्योर्ड श्री कृष्ण, हमारा मन आप में ही रहेगा। इस प्रॉमिस के साथ आज के सत्र को यहां पर अल्प विराम दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।